Hello, friends. Welcome to the Daily Answer Writing Initiative by IS Network. Today is day 10, and today we have taken a portion from paper 2, that is governance, and specifically related to e governance question. So, we'll be looking at how we can write good answers for governance part in our paper 2, polity, and also we'll be looking at how and what are the requirements and tools of writing a good answer in governance. So, let's start. So, if we look at for the governance portion, the major requirements will be your second ARC report, your basic GS classes content, and examples from newspapers. So these will be the most important sources and requirements for writing a good answer in governance. Also, if you talk about what is governance and governance at a very basic level, if you leave all the other things aside, at a very basic level, governance is basically what? Delivery. It is delivery of services by the government. This is at the very basic is the meaning of governance, that is delivery. And for governance, DPSP, Directive Principles of State Policy, provides us a fundamental structure for improving and एडवांसिंग एंड एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो एक फंडामेंटल बेसिस प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ठीक है, DPSP हो गया. नाउ देयर ऑल्सो सर्टेन और फ्यू एजेंडाज ऑफ द गवर्नमेंट लाइक मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. ये मोटो है करंट गवर्नमेंट का. ठीक है, अदर इनिशिएटिव्स लाइक फ्रॉम file to field. So these are various initiatives and maxims which are being propounded by the government of the day in respect to governance. Now we have taken a question from e-governance and we're looking at what are the various dimensions of that question and how we can write a good answer. So let's start. See, e-governance is not only about utilization of the power of new technology, but also much about the critical importance of the use value. Explain. ठीक है, so the question tag here is explain. So the question is asking that e-governance is not only about the utilization of the power of new technology. Whatever the new technology that is current in the market, it is not only about that, but it also talks about the critical importance of the use value which it provides. Question is explain. So explain is our question tag. There is only one question tag, and explain we usually do two things, what plus how. So explain usually lies in between the light keywords which we have discussed already. Then here is explain in the intermediate state, and then there is heavy keywords like discuss, critically examine, critically analyze. So they are heavy keywords. So looking at how we can write an answer. So it was a 10 marker question and it was asked in UPSC 2018. So looking at how we can write and frame this answer. First, how beautifully we can give the content in this answer of whose content is very random and not particularly available on internet. ठीक है, तो I have compiled the content after reading many articles and now we will see कि कैसे लिख सकते हैं. तो उससे पहले इसका context देखें हम. Context में context क्या बोल रहे हैं कि on one hand there is newer technologies. One hand पे तो क्या है कि there is newer technologies and on the other hand there is use value of these technology in governance. तो इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए या ये भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंट एक लेवल की हैं, बट वी नीड टू स्ट्राइव मोर टूवर्ड्स द यूज़ वैल्यू ऑफ गवर्नेंस, टूवर्ड्स एक्यूरिंग द यूज़ वैल्यू ऑफ गवर्नेंस. तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कैसे क्या क्या हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, फिर GPS हो गया, GIS हो गया, देन हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हो गए, उसके बाद इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, उसके बाद बायोमेट्रिक्स हो गया. सो दीज आर न्यू टेक्नोलॉजीज, वी ऑल नो. ठीक है, एंड दीज न्यू टेक्नोलॉजीज आर हेल्पिंग इन द e-governance initiative. But at the same time, these new technology will not assure the use value of these technologies in governance. तो use value को enhance करने के लिए, use value की critical importance को showcase करने के लिए we will be writing
द आंसर मोर इन वेटेज ऑफ द यूज़ वैल्यू। ठीक है, तो मेन पार्ट ये है, तो 75 to 80% जो आंसर होगा वो शोकेस करेगा किसको, यूज़ वैल्यू को। अब नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन इन द इंट्रोडक्शन। एज ऑलवेज वी हैव टू ways of writing. One is through static, another way is through dynamic. So you can write both the introductions. So we'll be writing today both introductions. So we'll see ki how introductions can be written in both manners as per the demand of the question. So if we talk about what, see what, in what we can write e-governance definition in very brief. So e-governance definition is nothing but carrying out functions and achieving results of governance via use of ICTs। ठीक है, तो जो हमें पता है गवर्नमेंट की वैसे भी गवर्नेंस होती हैं। गवर्नेंस का मतलब हमने देख लिया, दैट इज़ डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो उसके फंक्शंस हैं, उस डिलीवरी मैकेनिज्म के फंक्शंस हैं और उसके जो अचीवमेंट्स हैं उनको किस चैनल के थ्रू अचीव करना, थ्रू द यूज़ ऑफ ICTs। ICTs का मतलब क्या होता है, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो ये तो हो गया एक स्टैटिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक डायनामिक इंट्रोडक्शन इसके अंदर कैसे बना सकते हैं कि लाइक न्यू टेक्नोलॉजीज़, क्वेश्चन वाले के रिस्पेक्ट में ही बना सकते हैं हम नया डायनामिक इंट्रोडक्शन कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं आर चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, ये चेंज कर रहे हैं लैंडस्केप ई गवर्नेंस का। एग्जाम्पल दे सकते हैं यहीं पे हम, एग्जाम्पल जो आरोग्य सेतु ऐप थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो दैट वाज यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ GPS, बट इसकी यूज़ वैल्यू क्या थी, ठीक है, या इसकी गवर्नेंस के रेस्पेक्ट में यूटिलिटी क्या थी, दैट इट हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19। ठीक है, तो ये हम इसका यहाँ पर एक करंट बेस्ड एग्जाम्पल के साथ इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करूँ तो देयर आर वेरियस थिंग्स यहाँ पर। अगर ई गवर्नेंस के अंदर मुझे और इसको इम्प्रूव करना है तो मैं यहाँ पर UNDP की बात कर सकता हूँ। ठीक है, UNDP के अंदर क्या है कि अकॉर्डिंग टू UNDP ई गवर्नेंस हैज़ 3 कोर थिंग्स। कोर थिंग्स के अंदर क्या क्या आती हैं, दैट इज़ ई एडमिनिस्ट्रेशन, देन देयर इज़ ई सर्विस डिलीवरी, देन देयर इज़ ई ठीक है, देन देयर इज़ थर्ड जो है वो क्या है, ई पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये UNDP ने हैज़ आइडेंटिफाइड 3 कोर डायमेंशंस ऑफ ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर ही लिख सकता हूँ। और मैंने सेकंड ARC की बात करी है, तो सेकंड ARC ने क्या बोला है, सेकंड ARC हैज़ ऑल्सो टोल्ड व्हाट, दैट ई गवर्नेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो आपको इतना नहीं लिखना है, आइदर यू कैन गो विद द स्टैटिक इंट्रोडक्शन पार्ट, तो उसके अंदर यू विल बी यूजिंग दिस डेफिनेशन एंड दिस एंड ARC सेकेंड रिपोर्ट वन लाइनर statement. And if you are going with the dynamic part, then you can simply say that new technology is changing the landscape of e-governance as seen in recent times. Example, Arogya Setu app using the technology of GPS has controlled the impact of COVID-19 which we have all seen. अब बॉडी पे आते हैं फटाफट, बिकॉज ये 10 मार्कर हमारे ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा, ओनली 2 पेजेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर 10 मार्कर। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्डली मेन बॉडी पे आते हैं। आई हैव जस्ट एलेबोरेटेड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब अगर हम बॉडी पे आते हैं तो वी कैन सिंपली राइट द हेडिंग फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन से हेडिंग ले लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेस्ट पार्ट इज़ कि क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उसी की हेडिंग बना लो। देन सेकंड, अगर हम देखें बॉडी के अंदर, सो आई हैव आइडेंटिफाइड फ्यू एरियाज, फ्यू डायमेंशंस एंड हैव मेड हेडिंग्स ऑफ देम। तो पहला क्या हो सकता है, बेटर टारगेटिंग ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ एंड प्रोग्राम्स। अब इसकी बेटर टारगेटिंग कैसे हो सकती है, एग्जाम्पल क्या होगा कि वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन, इसको कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट इज़ कलेक्टिंग, ठीक है, उसको क्या करें कि दैट शुड बी यूज टू बेटर केटर। ठीक है, इट शुड बी यूज फॉर बेटर केटरिंग द नीड्स ऑफ द सिटीजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड यू आर नॉट यूजिंग मच टू द यूटिलिटी ऑफ द सिटीजन्स। तो आप क्या जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसको बेटर केटर करो टू द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, अब इसका सिंपल एग्जांपल कैसे, इन्फॉर्मेशन कैटेगरी रिगार्डिंग सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है, रिगार्डिंग लाइफ स्टॉक सेंसस। ठीक है, तो अब जब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, नीड्स ऑफ द सिटीजन को केटर करने में। एग्जांपल कौन कौन सी होगी, बेटर टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज़। ठीक है, और रिसेंट एग्जांपल अगर देखें तो अभी जो कोविड-19 के वेग के अंदर जो फाइनेंशियल पैकेज आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो 20 लाख करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज था,
ठीक है, उसमें क्या है, दैट पैकेज वॉज डिज़ाइन फॉर केटरिंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, लाइक एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या है कि अलग उसमें एक प्रोविज़न था, पर्टिकुलर पैकेज था। तो हम क्या है कि इस इन्फॉर्मेशन को जो हमने कलेक्ट करी है उसको यूटिलिटी के अंदर इस टाइम में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कोविड टाइम्स, तो एग्ज़ाम क्वेश्चन क्या ज़्यादा रेलिवेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड क्या है कि टू अवॉइड, if we are using the critical importance of use value of the information which we have gathered with the use of new technologies, then we can avoid what narrow conception of governance। अब narrow conception of governance को कैसे avoid कर सकते हैं कि अगर हम यूज़ वैल्यू को निकाल रहे हैं तो वी विल बी गेटिंग मोर क्लैरिटी। हम क्लैरिटी हमें आएगी इफ़ यू आर यूजिंग दैट यूज़ वैल्यू का प्रोसेसिंग। क्लैरिटी के सेंस में आएगी फॉर हैविंग अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देन प्रोसेस आउटकम्स क्या क्या होने चाहिए उसकी क्लैरिटी आएगी। एन एग्जाम्पल, वी कैन ऑल्सो डू व्हाट, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन मेजरमेंट्स, ठीक है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन मेजरमेंट्स। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया था, कर्नाटका गवर्नमेंट स्टार्टेड व्हाट, कर्नाटका वैल्यूएशन एंड ई रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस वॉज यूजुअली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड ई रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। तो अब इससे पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, पॉजिटिव्स तो ये थे कि इससे क्या है, कन्विंस बढ़ गया, इस सर्विस को लेने का ईजीनेस बढ़ गई, इंक्रीज एसेसिबिलिटी हो गई, ठीक है। और इसमें क्या हुआ गया, जो रजिस्ट्रेशन का टाइम था वो क्या हो गया, टाइम गॉट रिड्यूस ड्रास्टिकली। बट कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैज़ नॉट रिड्यूस्ड व्हाट, हैज़ नॉट रिड्यूस्ड द इंफॉर्मेशन असिमेट्रीज, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन असिमेट्रीज थी सिस्टम में, ठीक है। एग्जांपल कि जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर क्या है कि लैंड डिस्प्यूट से केसेज हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन सिमेट्रीज क्या है कि नॉट रिड्यूस नहीं हो पाई हैं। एट द सेम टाइम जो लीगल वैलिडिटी थी किसी भी ट्रांजैक्शन की, ठीक है, लीगल वैलिडिटी को इंश्योर नहीं किया गया इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। बस दिस वॉज सिंपली फॉर इंक्रीजिंग द कन्वीनियंस, एसेसिबिलिटी एंड रिड्यूसिंग द टाइम पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन। बट इसके अंदर ये जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, लाइक इंफॉर्मेशन asymmetries इन द लैंड डिस्प्यूट केसेस, देन प्रोवाइडिंग लीगल वैलिडिटी टू द ट्रांजेक्शन्स ऑफ लैंड, वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की। और यही चीज़ क्या थी, एडवांस चीज़ें थी थ्रू विच द यूज़ वैल्यू क्या है कि यहाँ से अगर हम यूज़ वैल्यू को यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजीज़ की, जिससे हमने क्या है कि ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, इसके इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, अगर उसमें क्या है कि यूज़ वैल्यू को ज़्यादा इन्हेंस करते तो ये दो इश्यूज़ जो आ रहे हैं हम ये भी क्या है कि सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो इसलिए क्या है कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ वैल्यू के थ्रू इंक्रीज़ कर देंगे तो व्हाट होगा, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज़ हो जाएगी किसकी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो ये हो गया। देन इट अलाउस व्हाट, वैल्यू फोकस थिंकिंग। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे जो भी इंफॉर्मेशन वी हैव कलेक्टेड, ठीक है, इट नीड्स टू बी पास थ्रू, अगर हम इसकी डेटा माइनिंग करें, इन्फॉर्मेशन की क्या करें, डेटा माइनिंग करें, जैसे ब्लॉकचेन में होता है। देन अगर हम इसमें डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करें बाय वेरियस एल्गोरिथम्स, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। देन इसमें हम डेटा चर्निंग करें, डेटा को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करें और उसमें से पैटर्न्स निकालने की कोशिश करें। देन व्हाट इट विल डू इज़, इट विल ब्रिंग अस टू सम लॉजिकल conclusions, ठीक है। it will help us to come to some logical conclusions and these logical conclusions will help us to better design our processes। अब एग्जांपल यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एग्जांपल भी दे सकते हूँ, जैसे कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम जो है, ठीक है। तो इट हैज़ अलाउड व्हाट, इट हैज़ अलाउड अ पैन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एक नेटवर्क बना दिया है पैन इंडिया। उसके अंदर क्या है कि वी हैव इंटीग्रेटेड द एंटायर पुलिसिंग सिस्टम, ठीक है, पुलिसिंग सिस्टम को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है। एज रिजल्ट क्या होगा, जब भी कोई ऐसा इशू होगा तो उसमें क्या है कि हम क्रिमिनल को ईजिली ट्रैक कर पाएंगे यूजिंग हिज पास्ट एक्टिविटीज़ एंड यूजिंग हिज पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन है विच वी आर गैदर विद द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, ईजिली जो हमने गैदर कर ली है। बट इस इंफॉर्मेशन को इन प्रोसेसेस के थ्रू वी विल टेक देम टू सम लॉजिकल कंक्लूजन एंड दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो यहाँ पर CCTS की बात कर सकते हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम भूमि प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं कर्नाटका में। सो देयर आर वेरियस अदर
एग्जाम्पल्स, गुड एग्जाम्पल्स ऑफ ई गवर्नेंस इन रिसेंट टाइम्स। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि टू एनहेंस द पब्लिक वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम फोकस करें किस पे, यूज़ वैल्यू पे। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी यूज़ वैल्यू पे इफ़ यू विल फोकस देन इट विल एनहांस व्हाट, पब्लिक वैल्यू। अब एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है कि मैनी टाइम्स ही देखा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, किसी भी सिटीज़न के या किसी भी लोकेलिटी की, दैट डिपेंड्स मोर ऑन द जोग्राफिकल आस्पेक्ट्स। ठीक है, वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स आर मोर जोग्राफिकली इंक्लाइंड एज कंपेयर टू सेक्टोरली इंक्लाइंड। अब इसका मतलब क्या है कि थोड़ा टफिकल लाइन है इसका, मतलब सिंपल सा है कि एग्जाम्पल से समझे हम अगर, तो एक फार्मर है। ठीक है, तो फार्मर को मतलब नहीं है कि उसके पास कि गवर्नमेंट कौन सी सब्सिडीज़, कौन से प्रोग्राम्स, कौन से स्कीम्स, कौन से प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने रन कर रखे हैं और गवर्नमेंट कौन से डिपार्टमेंट्स इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, फार्मर डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन विच ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, लाइक रूरल डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो फार्मर को कोई मतलब नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन चीज़ों को रन कर रहे हैं, बट फार्मर को क्या इंपॉर्टेंस है कि उसके जोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, उसकी लोकेलिटी में व्हाट ऑल सब्सिडी स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो फार्मर इज़ मोर कंसर्न विद दिस थिंग रेदर देन कि कौन से सेक्टोरल वे में इसको डिवाइड कर रखा है स्कीम्स को। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्कीम्स को इस तरीके से हम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, उसकी यूज़ वैल्यू को इस तरीके से एनहेंस कर सकते हैं दैट वी कैन ट्राई एडवर्टाइजिंग इट दैट these are the schemes, projects and programs of government available in this particular locality which people can have more accessibility and awareness। तो पब्लिक वैल्यू कैसे इंक्रीज हो जाएगी। एट द सेम टाइम यूज़ वैल्यू को अगर हम यूज़ करेंगे अच्छे से, देन वी गेट टू नो दैट व्हाट ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर बाईपास्ड। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन क्या है कि सोसाइटी के अभी भी क्या है कि हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन सिस्टम से क्या बाईपास हो रहे हैं, और उन पर्टिकुलर सेक्शंस को क्या है कि हम कवरेज करने के लिए वी विल बी अप्लाइंग मोर ऑफ आवर थिंकिंग एंड नॉलेज एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द बैकग्राउंड। तो हम क्या है कि उन सब सेक्शंस को भी क्या इंक्लूड कर सकते हैं इन द एम्बिट ऑफ गवर्नेंस। तो ये हुआ 5 पॉइंट्स। आई होप we have given all the points with examples, we have substantiated with them examples and the content is good for this question। ठीक है, अगर कंक्लूजन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है ऑल्दो इट्स अ फैसिलिटेटर, ठीक है, एक फैसिलिटेटर है, बट जो रियल यूटिलिटी है, ठीक है, ऑफ ई गवर्नेंस will only be achieved through giving more focus on the use value of information। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी क्या है कि इट इज़ प्रोवाइडिंग यू दैट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर इन प्रोवाइडिंग दैट इन्फॉर्मेशन, बट आपको अगर यूटिलिटी को इंक्रीज़ करना है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नेंस की, देन यू नीड टू इंक्रीज द यूज़ वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन। यू कैन राइट दिस कंक्लूजन इन अ सिंपल मैनर। तो हमने इसमें सेकंड ARC को यूज़ कर लिया, हमने इसमें कर्नाटका के एग्जाम्पल्स देख लिए, पॉजिटिव भी देख लिए, नेगेटिव भी देख लिए, उसके बाद हमने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ ये आंसर लिखा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस आंसर। अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नाउ यू कैन गो एंड चेक ऑन इंटरनेट कि कहीं पे भी ऐसा कंटेंट इस क्वेश्चन के लिए अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, आई हैव कंपाइल्ड दिस आंसर आफ्टर रीडिंग मेनी आर्टिकल्स एंड मेनी वेबसाइट्स, और फिर उस कंपाइलेशन को क्या है कि आई हैव कस्टमाइज फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सो व्हाट वी कैन सी इज़, ठीक है, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नेंस के क्वेश्चंस को डील करना है। गवर्नेंस के सोर्सेज बहुत सिंपल हैं, सेकंड ARC रिपोर्ट हो गई है, देन हमारे पास न्यूज़पेपर के अंदर जो भी एग्जांपल्स आते हैं, गुड एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नेंस एंड देन बैड एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नेंस, दोनों को हमें क्या है कि एक छोटे से बुक के अंदर लिख के रखना है फॉर दैट करंट ईयर इन विच वी आर गिविंग मेन्स। तो करंट एग्जाम्पल्स यू आर कोटिंग, तो वो ज़्यादा एम्फोसाइज करेगा एग्जामिनर के माइंड में। ठीक है, दिस हाउ वी कैन राइट गुड आंसर्स। सो यू कैन ऑल्सो check the description for getting evaluated your papers with us। ठीक है, do like and share the initiative, will be coming with more such sessions in future। फर्स्ट फॉर एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव, ठीक है, एग्रीकल्चर की एक सीरीज़ आएगी, और एक कोरोना वायरस कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं न्यूज़ के अंदर उनके क्वेश्चन रिलेटेड एक सीरीज़ और आएगी। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द इनिशिएटिव, और आप डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।